Hello. 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 Can you all see me? Hello. Hello. Can you all see me? Yes. तुम्हारा छक्का पंजा तो इतना है परेशान नहीं Hello. Yes. Okay. Somebody is making noise here. Yes, ma'am. Please be. Otherwise, I will mute all of you. Or if you can tell me that there is some problem, then we can. You can mute yourself. अरे यार अरे आवाज जा रही वामन पूरी पता चलिए आ रही है अलग कि तुम लोग हल्ला कर रहे पीछे से हल्ला हो रहा Yeah. Shall we start? Sparsh, perhaps you are muted. Unmute yourself. Okay. Today we are dealing with game applications. And just I wish to tell you that I have formalized your plan, that is program. Your class will be each day. Today is Monday. Every Monday, Wednesday and Thursday, Monday, Wednesday and Friday, your class will be on 2 to 3 p.m. Okay. Every Monday, Wednesday and Friday, you will have a class on 2 to 3 p.m. Is it okay? All of you? I will tell you the schedule and game, tell you the meeting and password and every time, but it is like to be aware beforehanded. This is the schedule that I have planned, that 2 to 3 p.m. I will take your class and 4 to 5 p.m. I will take MBE class. Tuesday, Thursday and Saturday, I have 2 other classes in live, right? So today we have already understood about the game application, game theory, basics of the game theory, that what is dominant strategy, what is mixed strategy, what is the Nash equilibrium. Today we are doing with game application, and we have cooperative or coordinating games. 4 types of games that we are doing: cooperative or coordinating games. Then second one is competition games. Third one is games of coexistence. And the fourth type is games of commitment. These 4 types of games. Are you able to see this? Games of cooperation, cooperative, competition, कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेटिंग आप कंपटीशन इसे coordinating भी कह सकते हैं, cooperation भी कह सकते हैं, then games of competition, then games of coexistence, and then games of commitment. These 4 types of games are there, and one by one we will analyze these games. Today or tomorrow I will also send you previous year question paper, and in that previous year question paper I have asked about these games, short notes about these types of games. So as I talked to many teachers, they said that your exams will happen, your exams will take place, and so you need to be prepared for exams. Maybe they will take place in July, maybe they will take place in June, that we don't know, but exams will happen, so you need to be prepared for the whole syllabus. And I normally give short notes for writing on these individual games. I give writing short notes on them. So first type is that games of
coordination or cooperation. Games of coordination or games of cooperation. In this, we have 4 main games. Number 1 is the battle of sexes. Number 2 is prisoner's dilemma. And what is number 1? Battle of sexes. Number 2 is prisoner's dilemma. Number 2 is prisoner's dilemma. Okay. Number 3 is assurance games. Games of assurance. And number 4 is chicken. These 4 types of games are there. कोऑर्डिनेटिंग गेम एक टाइप ऑफ गेम्स है और इस टाइप में 4 टाइप्स ऑफ गेम्स, 4 गेम हम पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेटिंग गेम्स एक कैटेगरी है, उसमें हम 4 सब गेम्स पढ़ेंगे. बैटल ऑफ सेक्सेस, प्रिजनर्स डिलेमा, assurance game, and the last game is that of the chicken. So now individually I am dealing because we have short time, so we will not have more time on discussion. I will directly draw the payoff matrix of the game. Number 1 game is that of the battle of sexes. Please don't talk among yourself. The noise creates disturbance for all. If you are not willing to attend, don't attend. Compulsion. It is for those who wish to attend. Please note down this payoff matrix for the battle of sexes. Are you able to see it? We have 2 players here, boy and a girl. इस गेम में हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट हैं, एक लड़का है और एक लड़की है. अब ये दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने जाना चाहते हैं. बैटल ऑफ सेक्सेस. सेक्सेस मींस जेंडर. दोनों जेंडर्स के बीच में वॉर है. एक लड़का है और एक लड़की है. दोनों की जो चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो डिफरेंट है. 2 तरह की मूवीज थिएटर में एयर करी जा रही हैं, इधर एक्शन मूवी और आर्ट मूवी. 2 तरह की मूवीज हैं, एक्शन मूवी एंड आर्ट मूवी. बॉय की प्रेफरेंसेस टुवर्ड्स एक्शन मूवी. लड़का कौन सी मूवी देखना चाहता है? एक्शन मूवी. एंड लड़की की जो प्रेफरेंस है दैट इज टुवर्ड्स आर्ट मूवी. नाउ ये एक्सपेक्टेड, आपको पहले ही मैंने बताया है कि यहाँ जहाँ पे ऑफ्स लिखे रहते हैं इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? पे ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स को हम पे ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. अब अगर बॉय जो है, बॉय के पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं. वो या तो एक्शन मूवी को चूज कर सकता है या फिर आर्ट मूवी को चूज कर सकता है. उसी तरह से गर्ल के पास भी 2 स्ट्रैटेजीज हैं. वो या तो एक्शन मूवी को चूज कर सकती है या आर्ट मूवी को चूज कर सकती है. अब अगर और दोनों को मूवी साथ में देखने जाना है क्योंकि दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. अगर लड़का एक्शन मूवी चूज करता है और लड़की भी एक्शन मूवी चूज करती है तो लड़के को, क्योंकि लड़के की प्रेफरेंस, बॉय की प्रेफरेंस क्या थी? एक्शन मूवी, तो उसे कितना रिटर्न मिल रहा है? 2 का रिटर्न मिल रहा है. जो पहला लिखा है वो रो का पे ऑफ है, लड़के का पे ऑफ है. और लड़की को कितना रिटर्न मिल रहा है? जो कि कॉलम में मैंने लिखा है 1 का. अगर लड़का एक्शन मूवी देखने चला जाता है, लड़की आर्ट मूवी देखने चली जाती है, क्योंकि वो दोनों साथ में रहना चाहते थे तो दोनों को कोई रिटर्न नहीं मिलता है. दोनों को कितना रिटर्न मिलेगा? 0 0. If the boy chooses art movie and the girl chooses action movie, again the same scene, both will get a payoff of 0 0.
If the boy chooses art movie and girl chooses also art movie, तब दोनों एटलीस्ट साथ हैं. इसीलिए लड़के को 0 से 100 तो ज्यादा का पे ऑफ मिलेगा, 1 का पे ऑफ मिलेगा, और लड़की को कितना पे ऑफ, क्योंकि उसकी तो प्रेफरेंस भी कौन सी थी, आर्ट मूवी थी, तो उसको कितने का पे ऑफ मिला, 2 का पे ऑफ. तो यहाँ पर अगर दोनों कोऑपरेट कर लेते हैं तो या तो वो ये वाला नैश इक्विलिब्रियम होगा या फिर ये वाला नैश इक्विलिब्रियम. इसीलिए इस गेम को कहा गया बैटल ऑफ सेक्सेस को गेम ऑफ कोऑर्डिनेशन. व्हाई इट इज बीइंग सेड गेम ऑफ कोऑर्डिनेशन? क्योंकि कोऑर्डिनेट दोनों जब साथ में होंगे तभी उनके रिटर्न्स मैक्सिमाइज होंगे. अगर दोनों अलग अलग मूवी देखने चले जाते हैं तो उनके रिटर्न्स कितने हो जाएंगे, 0-0. अब या तो वो ये वाला चूज कर सकते हैं या फिर वो ये वाला चूज कर सकते हैं. अगर कुछ इस तरह का कोई एक्स्ट्रा कंडीशन है कि क्योंकि आर्ट मूवी का थिएटर उनके घर के पास है और इस वजह से वो आर्ट मूवी में चले गए, तो इस वाले दोनों नैश इक्विलिब्रियम है विच आर इक्वली लाइकली. अगर किसी और वजह की, because of the existence of some other reason, if they chooses one of the Nash equilibrium over other, then it would be known as focal point of the game. उसको क्या कहा जाता है, गेम का फोकल पॉइंट. क्योंकि आर्ट मूवी का चूज हमने चॉइस सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि आर्ट मूवी का थिएटर घर के पास था, बाकी और कोई रीजन नहीं था, तो उस पर्टिकुलर नैश इक्विलिब्रियम को क्या कहा जाएगा, फोकल पॉइंट ऑफ द गेम. ठीक है. सो दिस इज अ कोऑर्डिनेटिंग गेम जहां पर रिटर्न्स मैक्सिमाइज कब हो रहे हैं, जब बॉय एंड गर्ल चूज टू कोऑर्डिनेट ईच अदर. And there are 2 Nash equilibria. What do you mean by a Nash equilibria? A Nash equilibria is the both of them. Nash equilibria हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. अगर हमें दूसरे की स्ट्रैटेजी पता हो तब अपना पहला वाला प्लेयर जिन स्ट्रैटेजीज को चूज करे ताकि उसके रिटर्न्स ऑप्टिमम आए, ताकि उसके रिटर्न्स मैक्सिमम आए. ठीक है. So this was your first game which was known as Battle of Sexes. Now we have a second game and second game is Prisoner's Dilemma. ये सबसे ज्यादा important game है पूरे game theory में and it has extensive applications in oligopoly. These games are being described in a very simple manner by me so that you can actually understand the crux of the game. ये भी एक cooperative game है और इसमें हम उन चीजों को भी analyze करेंगे जिन्हें हमने 4th unit में पढ़ा है. Just give me a sec. I'm drawing the payoff matrix of this. Someone is having a lot of noise in their house. Please mute yourself. Now draw this matrix. See this matrix. We have 2 prisoners. 2 criminals हैं. एक criminal का नाम है रंगा और दूसरे criminal का नाम है बिल्ला. ठीक है. There are 2 criminals in this game. Name of the first criminal is Ranga. The name of second criminal is Billa. उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया. उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया. वो तो नहीं है जिसमें Just a second. दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया. पुलिस ने उन दोनों को जैसे ही पकड़ा, पुलिस के पास अब 2 strategies थी. Should I mute all of you because somebody is having great noise in there? I am muting all of you and it is disturbing all. Yes, ma'am. And afterwards, please raise your hands or message me and I will unmute that particular person so that this much of noise will not occur. Okay, now there is no noise. So there are 2 prisoners, Ranga and Billa, and पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया after they committed the crime. लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है जो उनके अगेंस्ट यूज किया जा सके. So पुलिस ने दोनों को कहा कि पिटाई करी उनकी और कहा कि तुम्हारे पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं, अपना या तो जुर्म कबूल कर लो. मतलब अब उनके पास 2 स्ट्रैटेजीज थी. जब पुलिस ने उन्हें पीटना शुरू किया, या तो वो कमिट कर सकते थे कि हाँ हमने क्राइम किया, या फिर वो उस क्राइम को डिनाई कर सकते थे. रंगा के पास भी 2 स्ट्रैटेजीज थी. रंगा कुड कमिट एंड रंगा कुड डिनाई.
Ranga could commit and Ranga could deny, right? And Billa के पास भी दो strategies थी, Billa could commit and Billa could deny, right? दोनों के पास ये दो स्ट्रैटेजीज थी। अब आप देखिए, अगर रंगा कन्फेस कर लेता है और बिल्ला भी कन्फेस कर लेता है, तो इनके पे ऑफ्स कितने हैं? -3 यानी दोनों को 3-3 साल की जेल की सजा हो रही है। अगर दोनों कन्फेस कर लेते हैं तो दोनों को कितने साल की सजा हो रही है? जेल की 3-3 साल की। इसीलिए इनके पे ऑफ्स है -3। अगर रंगा कन्फेस कर लेता है लेकिन बिल्ला डिनाई कर देता है, तो रंगा को तो पुलिस ने कहा जो कन्फेस कर लेगा, कन्फेस कर लेने पर आपकी सजा कम हो जाएगी। अगर रंगा ने कन्फेस कर लिया लेकिन बिल्ला ने डिनाई कर दिया, तो ये प्रूव हो गया कि क्राइम तो हुआ था, क्योंकि रंगा ने कन्फेस कर लिया था तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया, जल्दी छोड़ दिया और बिल्कुल कोई सजा नहीं दी, उसको 0 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हुआ, जेल में उसे रहना ही नहीं पड़ा। लेकिन बिल्ला को क्योंकि उसने डिनाई कर दिया था, इसलिए कितने साल की सजा हुई? 6 इयर्स की। सो -6 बिल्ला का पे ऑफ है और रंगा का पे ऑफ है 0। अगर रंगा डिनाई कर देता है और बिल्ला कन्फेस कर लेता है, तो रंगा को 6 इयर्स की सजा हो जाएगी, इसीलिए उसका पे ऑफ है -6, और बिल्ला क्योंकि उसने कन्फेस कर लिया तो पुलिस उसे छोड़ देगी और उसका पे ऑफ होगा 0। लेकिन अगर दोनों ही डिनाई कर देते हैं, रंगा भी डिनाई कर देता है और बिल्ला भी डिनाई कर देता है, तो आउटकम कितना होगा? -1। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, बिना सबूत के पुलिस मैक्सिमम उन्हें जेल में कितने साल रख सकती है? सिर्फ 1 साल। सो अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा वाला आउटकम इसमें होना चाहिए? रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। रेज करिए हाथ अपना। कौन सा आउटकम होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, -1 यस, यही होना चाहिए। यस इरम। मैम -3 बिकॉज वो सोचेगा कि सामने वाला कन्फेस कर लेगा, इस वजह से वो भी कन्फेस करने की सोचेगा। हाँ, लेकिन जो बेस्ट आउटकम है वो कौन सा है? -1 है। अगर दोनों डिनाई कर दें -1 बेस्ट है ना, बेस्ट आउटकम जो आएगा वो -1 आएगा जब दोनों डिनाई कर देते हैं। यस मैम। राइट। सो अब लेकिन इन्होंने जैसा कि एज इरम राइटली सेड, -1 का आउटकम क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमेशा दोनों को ये डर लगेगा कि हम तो कन्फेस कर लेंगे और दूसरा कि हम तो डिनाई कर देंगे, पर दूसरा क्या करेगा? कन्फेस कर लेगा। तो किसी को भी ये श्योर नहीं है कि अगर मैंने डिनाई कर लिया तो दूसरा भी डिनाई करेगा। तो ये है तो कोऑपरेशन का गेम, क्योंकि इसका बेस्ट आउटकम क्या है? -1। लेकिन दूसरे को ये डर होगा, रंगा को लगेगा कि अगर मैंने डिनाई कर दिया तो हो सकता है कि बिल्ला कन्फेस कर ले, और अगर बिल्ला कन्फेस कर लेगा तो बिल्ला को तो 0 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा, मुझे 6 इयर्स का हो जाएगा। और इसी तरह से बिल्ला को लगेगा कि अगर रंगा ने कन्फेस कर लिया तो रंगा तो छूट जाएगा और मैंने डिनाई कर लिया तो मुझे 6 साल की सजा हो जाएगी। तो यहाँ पर दो नैश इक्विलिब्रियम पॉसिबल हैं, -1 एंड -3 और -1 पैरेटो एफिशिएंट आउटकम है इन कंपैरिजन टू -3 क्योंकि इस वाले आउटकम पर पहुंचने में अगर दोनों डिनाई कर देते हैं तो दोनों रंगा और बिल्ला बेटर ऑफ हैं, एक दूसरे को वर्स ऑफ किए बिना दोनों ही बेटर ऑफ हो रहे हैं। तो ये पैरेटो ऑप्टिमल है और ये पैरेटो सब ऑप्टिमल आउटकम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का इम्प्रिजनमेंट ज्यादा है, लेकिन फिर भी पैरेटो सब ऑप्टिमल आउटकम प्रिवेल करेगा पैरेटो ऑप्टिमल आउटकम पर। क्यों? क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है रंगा को कि मैंने डिनाई कर दिया तो बिल्ला भी डिनाई करेगा, या बिल्ला को कि मैंने डिनाई कर दिया तो रंगा भी डिनाई करेगा। इस श्योरिटी के ना होने की वजह से ही दोनों कन्फेस स्ट्रैटेजी को चूज करेंगे, जबकि पैरेटो एफिशिएंट स्ट्रैटेजी कौन सी थी? डिनाई स्ट्रैटेजी। पैरेटो एफिशिएंट स्ट्रैटेजी थी डिनाई स्ट्रैटेजी। और लेकिन जो इक्विलिब्रियम रिजल्ट होगा वो कौन सा रिजल्ट होगा? कन्फेस स्ट्रैटेजी। मतलब रंगा भी कन्फेस करेगा और बिल्ला भी कन्फेस करेगा, क्योंकि पुलिस ने उन्हें अलग अलग केबिन्स में पकड़ करके रखा हुआ है। इतना क्लियर हुआ?
हाँ, अगर रंगा को ये अश्योरेंस मिल जाता है कि बिल्ला भी डिनाई करेगा तो फिर रंगा भी डिनाई कर देगा, या बिल्ला को ये अश्योरेंस मिल जाता है कि रंगा डिनाई करेगा तो फिर बिल्ला भी डिनाई कर देगा। लेकिन इस अश्योरेंस का ना मिल पाना ही उन दोनों को कहाँ लीड कर रहा है? पैरेटो सब ऑप्टिमल आउटकम के पास इंस्टेड ऑफ अ पैरेटो ऑप्टिमल आउटकम। एक तो ये बात हुई कि उन्हें अश्योरेंस चाहिए। दूसरी बात क्या हुई कि अगर ये गेम इनडेफिनेट टाइम्स रिपीट होता है, तो अगर एक बार रंगा ने धोखा दिया तो अगली बार बिल्ला भी धोखा दे देगा, और उस स्ट्रैटेजी को कहते हैं टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी। टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी, जिसे हम कहते हैं ना, जो तुम्हारे साथ जैसा करे उसके साथ तुम वैसा करो। तो गेम थियरी में ये स्ट्रैटेजी कहलाती है टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी। और अगर ये गेम इनडेफिनेट टाइम चलता है, अगर वन टाइम चलता है, ये गेम केवल एक बार होता है, तो कौन सा आउटकम रिजल्ट करेगा? -3 का आउटकम। लेकिन अगर ये इनडेफिनेट टाइम्स ये गेम रिपीट होता है, तो फिर जो स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी वो टिट फॉर टैट स्ट्रैटेजी होगी। और उस केस में बहुत लाइकली है कि हम किस वाले आउटकम को रीच करें? -1 वाले आउटकम को, जो कि पैरेटो एफिशिएंट आउटकम है। सो प्रिजनर्स डिलेमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेम है, जो कि गेम थियरी में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका सीधा सीधा एप्लीकेशन किसके साथ आता है? ओलिगोपोली में। जब ओलिगोपोली में कार्टल्स बनाए जाते हैं। कार्टल का आपको पता है कार्टल क्या होता है? CARTEL कार्टल। कार्टल वो ग्रुप है जो डिफरेंट ओलिगोपोलिस्ट मिलकर के बनाते हैं। जैसे वर्ल्ड का जो बिगेस्ट कार्टल है उसका नाम है ओपेक, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ने मिलकर के बनाया है। ठीक है, सो कार्टल एक ऐसा ग्रुप होता है जो डिफरेंट ओलिगोपोलिस्ट मिलकर के बनाते हैं। और इन कार्टल्स में रंगा और बिल्ला की जगह आप मानिए फर्म ए और फर्म बी। और यहाँ पर जो कन्फेस डिनाई की स्ट्रैटेजी है उसको आप चेंज कर सकते हैं चीटिंग एंड नॉन चीटिंग। कार्टल में जब ओलिगोपोलिस्ट मिलकर के अपना कार्टल बनाते हैं तो वो एक प्राइस फिक्स कर लेते हैं, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग परफेक्ट कंपटीशन के प्राइस से ज्यादा होता है, और वो अनरियलिस्टिकली प्राइस को हाई करते हैं। जब प्राइस ज्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब प्राइस हाई होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और क्वांटिटी डिमांडेड कम होने की वजह से किसी भी इंडिविजुअल ओलिगोपोलिस्ट के लिए एक इंसेंटिव क्या होता है कि वो चीटिंग करे, और चीटिंग करने के बाद वो अपने आउटपुट का सेल बढ़ा दे, क्योंकि अगर वो प्राइस कम करेगा तो आउटपुट का सेल क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो उसी तरह से कि वो डिनाई, कि वो कन्फेस कर जाए अपना प्राइस, यानी चीट कर जाए। तो चीटिंग एंड नॉन चीटिंग दो स्ट्रैटेजीज होंगी। तो चीटिंग वाली स्ट्रैटेजी में क्या होगा? उसका जो प्राइस, उसकी जो क्वांटिटी सोल्ड होगी वो बढ़ जाएगी। और उस केस में अगर पहले ओलिगोपोलिस्ट को ये लगता है कि इसने चीट किया, इसने प्राइस कम कर दिया, तो दूसरा ओलिगोपोलिस्ट भी क्या करेगा? अपना प्राइस, दूसरी फर्म भी अपना प्राइस घटाएगी, और प्राइस वॉर अगेन शुरू हो जाएगी। जबकि कार्टल का जो बेसिक एम उन्होंने आपस में मिलकर के बनाया था, वो क्या बनाया था? कि हम आपस में चीट नहीं करेंगे और प्राइस को हायर लेवल पर फिक्स करेंगे, ताकि हमारे टोटल प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सकें। सो प्रिजनर्स डिलेमा का एप्लीकेशन कार्टल के ऑपरेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो दो गेम्स हमने कर लिए, पहला बैटल ऑफ सेक्सेस और दूसरा हमने किया प्रिजनर्स डिलेमा। अब हम तीसरे गेम पर आते हैं, और तीसरे गेम का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि अभी जो एग्जांपल, जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, बहुत सारे मीडिया सर्कल्स में ये बात आ रही है कि इसमें चाइना और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर थी, जो ट्रेड वॉर के रीजन थे, तो इट इज अ बायो इकोनॉमिक वेपन जो कि लॉन्च किया गया इन ऑर्डर टू शैटर द यूएस इकोनॉमी। ये बहुत ज्यादा आ रहा है। अब इसके बाद दोनों इकोनॉमीज के लिए ये चीज आती है कि भाई वो बायो वेपन्स या फिर इकोनॉमिक वेपन्स या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए या ना बनाए। तो अब चाइना के पास भी दो स्ट्रैटेजी है कि वो वेपन्स को बनाए या वो वेपन्स को ना बनाए, और यूएस के पास भी दो स्ट्रैटेजी है कि वो वेपन्स को बनाए या वेपन्स को ना बनाए। क्योंकि हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए वेपन्स को बनाना चाहता है, लेकिन अगर दोनों वेपन्स को बनाएंगे तो यू कम टू अ सब ऑप्टिमल आउटकम। सो दिस इज द थर्ड पे ऑफ मैट्रिक्स assurance game. We have 2 players, USA and China. US को हमने लिखा इधर पर
रो साइड में और चाइना को हमने लिखा कॉलम साइड में। सो यूएस के पास दो ऑप्शन है, इधर यूएस विल refrain from building weapons or US will build weapons. And China also has two options, either China will refrain from building weapons or China will build the weapons. So in case both refrain from building weapons, then we have the outcome of 4,4. यानी दोनों को कितना पे ऑफ मिल रहा है, 4 and 4 का। अगर दोनों वेपन्स, अगर एक रेफ्रेन करता है और दूसरा बिल्ड करता है, मान लीजिए यूएस ने वेपन नहीं बनाया लेकिन चाइना ने बना लिया, तो यूएस का पे ऑफ कम हो जाएगा, लेकिन चाइना का पे ऑफ उस कंटेक्स्ट में बहुत बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यूएस का पे ऑफ कितना है, 1 के बराबर, और चाइना का पे ऑफ कितने, किसके बराबर है, 3 के बराबर। अगर यूएस ने बना लिया और चाइना ने नहीं, अगर यूएस ने नहीं बनाया और चाइना ने बना लिया, देन इट इज 3,1 का पे ऑफ। और अगर दोनों ने बना लिया तो कितने का टोटल पे ऑफ आ रहा है, 2,2 का। सो अगर दोनों बना ले रहे हैं, अब आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो ऑप्शन, यहाँ दो अगेन इक्विलिब्रिया रिजल्ट होते हैं। दिस इज रेफरेन, जहाँ आउटकम्स कितने हैं, 4,4 के बराबर, एंड देन देयर इज बिल्ड, जहाँ आउटकम्स कितने हैं, 2,2 के बराबर। सो ये जो बिल्ड वाला ऑप्शन है, दिस इज पैरेटो ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम। दिस इज पैरेटो इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, मैक्सिमाइज हो रहे हैं, और दोनों ने बेहतर पे ऑफ्स को अचीव किया है। लेकिन दोनों अल्टीमेटली कौन सा इक्विलिब्रियम फॉलो करेंगे, जैसे कि प्रिजनर्स डिलेमा में कन्फेस वाला आउटकम ज्यादा लाइकली था जो कि फॉलो किया गया था, उसी तरह से यहाँ पर बिल्ड वाला ऑप्शन ज्यादा लाइकली आ रहा है। और इस वजह से 2,2 यानी कि दोनों के दोनों अपने न्यूक्लियर वेपन्स, अपने बायो वेपन्स, अपने केमिकल वेपन्स बिल्ड कर रहे हैं। और ये जो आउटकम है, ये पैरेटो सब ऑप्टिमल नैश इक्विलिब्रियम है, ये पैरेटो ऑप्टिमल नैश इक्विलिब्रियम है। लेकिन जो लाइकली ऑप्शन जो रिजल्ट होता है कि वो दोनों ही वेपन्स बनाएंगे, क्योंकि इन केस अगर यूएस वेपन नहीं बना रहा है तो उसका पे ऑफ बहुत कम हो जा रहा है इन कंपैरिजन टू चाइना, और अगर चाइना वेपन नहीं बना रहा है तो उसका पे ऑफ बहुत कम हो जा रहा है इन कंपैरिजन टू यूएस। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये ज्यादा लाइकली आता है। ये किस केस में ये लोग, क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या वो कंडीशंस हैं जिनके थ्रू ये पैरेटो सब ऑप्टिमल आउटकम से कहां पहुंच सकते हैं, 2,2 से इनको कहां पहुंच जाना चाहिए, 4,4 तक। उसके लिए इन्हें अश्योरेंस चाहिए। अश्योरेंस का क्या मतलब हुआ कि उन्हें ये अश्योरिटी मिल जाए कि अगर हम नहीं बनाएंगे, यूएस को ये अश्योरेंस मिल जाए कि अगर यूएस नहीं बनाता है तो चाइना भी नहीं बनाएगा, चाइना को ये अश्योरेंस मिल जाए कि अगर चाइना नहीं बनाता है तो यूएस भी नहीं बनाएगा। सो दे विल likely to come to the Pareto efficient outcome, that is 4,4. So this was the third game जिसका application military context में ज्यादा है। Now we are coming to a fourth game, and the fourth game is that of chicken. Fourth game कहलाता है chicken. इसका मैं पे ऑफ मैट्रिक्स बना रही हूँ। This is the payoff matrix of the game chicken. ये चिकन की payoff matrix है। यहाँ पर we have two players, we have player 1 and we have player 2, जिसे कहते हैं, इस गेम का नाम चिकन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जैसे टीनेजर्स के बीच में शर्त लगती है। Have you all seen the movie गुलाम, जो आमिर खान की थी? उस मूवी में एक सीन था 10-10 की दौड़, जिसमें वो लोग ट्रेन के साथ दौड़ कर रहे थे। Most likely you guys have not seen that movie, so I'm just giving you an example. जैसे दो टीनेजर होते हैं जिनके बीच में आपस में रेस लगती है कि दोनों मोटरसाइकिल से ड्राइव करेंगे और जो पहले मुड़ जाएगा डर के मारे वो चूजा कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों के पास दो स्ट्रैटेजीज हैं, या तो मुड़ जाएं या स्ट्रेट ड्राइव करें, या तो स्वर्व दैट इज मुड़ जाएं या फिर स्ट्रेट ड्राइव करें। अगर दोनों मुड़ जाते हैं तो आउटकम्स कितने हैं, 0-0, गेम का मजा ही नहीं रहता है। अगर दोनों
अगर एक मुड़ जाता है तो वो तो चूजा कहलाएगा, उसका आउटकम हो जाएगा -1, और जो स्ट्रेट ड्राइव करेगा उसको मानेंगे कि इसमें हिम्मत ज्यादा है, सो उसका आउटकम हो जाएगा 1। जो कि स्ट्रेट ड्राइव करेगा अगेन उसका आउटकम होगा 1। जो मुड़ जाएगा, अगर प्लेयर 2 मुड़ गया तो उसका आउटकम होगा -1। और अगर दोनों स्ट्रेट ड्राइव करते रहे कि हम नहीं झुकेंगे, तो दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे और बोथ विल रिजल्ट इनटू अ क्रैश। सो इस केस में अगर कोई एक प्लेयर अपने पहले ही उसने अपने हैंडल को लॉक कर लिया कि भाई मैं तो झुक ही नहीं सकता, मैं तो मुड़ ही नहीं सकता, अब तुम देख लो, तो अगर उसने ये डिसीजन ले लिया तो अगले के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मुड़ जाने के। तो इस केस में कौन प्रायर कमिटमेंट अपना दिखा देता है, कौन अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग दिखा देता है, उस कंटेक्स्ट में अदर प्लेयर का बिहेवियर होगा, क्योंकि अगर एक ने अपनी स्ट्रैटेजी प्री डिफाइंड कर ली तो अगला ऑब्वियसली क्रैश को नहीं चाहता है, तो वो -2 वाले आउटकम को नेगेट करेगा और किस आउटकम पर जाने की कोशिश करेगा कि भले ही वो मुड़ जाए लेकिन वो -2 से -1 बेहतर है। जब हम माइनस में जाते हैं तो हमारा जो -1 वाला आउटकम है वो बेहतर माना जाएगा इन कंपैरिजन टू -2 के आउटकम के, सो वो उस केस में मुड़ना प्रेफर करेगा। सो दैट वाज द लास्ट कोऑर्डिनेशन गेम, दैट वाज नोन एज चिकन। Now we are coming to games of competition. These were the games of coordination. Now we are coming to games of competition. Games of competition zero sum games होते हैं। Games of competition की कोई सब कैटेगरी नहीं है। कंपटीशन होना यानी एक विनर का होना, एक लूजर का होना। अभी आपने जितने चारों गेम्स कोऑर्डिनेशन के देखे, चाहे वो बॉय और गर्ल का मूवी डेट था या फिर वो प्रिजनर्स डिलेमा था। डिलेमा क्यों कहा हमने उसको प्रिजनर्स का डिलेमा, यानी वो दोनों डिलेमा में थे कि उन्हें कन्फेस करना चाहिए या उन्हें डिनाई कर देना चाहिए। या फिर आपका अश्योरेंस गेम था या चिकन गेम था, इन दोनों में बेहतर आउटकम मिल रहा था जब दोनों कोऑपरेट कर रहे थे। इसीलिए विनर और लूजर जैसी कोई बात नहीं थी, इसीलिए इन गेम्स को कहा गया गेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। लेकिन गेम्स ऑफ कंपटीशन में प्योरली विनर और लूजर के कंटेक्स्ट सामने आते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी एक की जीत क्या बन जाती है, दूसरे की हार। जैसे फुटबॉल वाले गेम्स होते हैं तो आप या तो लेफ्ट क्लिक डिफेंड कर सकते हो या राइट, और दूसरा प्लेयर डिफेंड करेगा या तो लेफ्ट या तो राइट। तो इस तरह का मैं एक मैट्रिक्स आपको बनाती हूँ और इसके साथ मैं आपको प्रोबेबिलिटी थियरी का भी एग्जांपल देती हूँ। ये जो है इस गेम मैट्रिक्स को आप देख सकते हैं। हियर वी हैव 50 -50 80 -80 90 -90 20 -20। जब एक जीत रहा है, दिस इज प्लेयर 1। प्लेयर 1 कैन किक इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड। फुटबॉल का मैच है, या तो प्लेयर 1 लेफ्ट साइड किक कर सकता है या राइट साइड किक कर सकता है। प्लेयर 2 भी या तो डिफेंड कर सकता है लेफ्ट साइड या डिफेंड कर सकता है राइट साइड। तो यहाँ पर अगर इसने लेफ्ट किक किया और इसने डिफेंड कर लिया इस साइड, ये मीटिंग 5 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि जूम मैक्सिमम 40 मिनट्स ही अलाउ करता है। उसके बाद में एडिशनल 10 मिनट्स के लिए एक नई मीटिंग शेड्यूल करूंगी, उसे आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? या फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे। तो ये आप देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैसे बनेगी। अगर हम ये माने कि भाई पहले की प्रोबेबिलिटी P है कि पहला प्लेयर, P प्रोबेबिलिटी है कि वो लेफ्ट साइड किक करेगा, तो 1 - P किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो राइट साइड किक करेगा। क्लियर? तो अगर प्लेयर 2 लेफ्ट साइड डिफेंड करता है तो प्लेयर 1 का एक्सपेक्टेड आउटकम किसके बराबर होगा, 50 × P, क्योंकि इसका आउटकम कितना है 50 × P + 90 × 1 - P। हम ये प्लेयर 1 का आउटकम लिख रहे हैं। अगर हमने ये माना कि प्लेयर 2 जो है वो राइट साइड डिफेंड करेगा, तो प्लेयर 1 के आउटकम्स कितने हैं 80 और 20, तब उसका हो जाएगा 80P + 20 1 - P। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 80 की प्रोबेबिलिटी है उसके लेफ्ट किक करने की और 1 - P प्रोबेबिलिटी है उसके राइट साइड किक करने की। सो दीज आर गेम्स ऑफ कंपटीशन, जहां एक का जो गेन है वो क्या हो जाएगा, दूसरे का लॉस। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, नाउ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई एम अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू।
because we are about to be closed in next 2 minutes. I think we need one more class in which we have 2 more types of games, and I will teach you about Minimax, Maximin, and Saddle Point solution. Your game theory part 3 will be conducted परसों. आज क्या है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे. अब आपकी ऑल्टरनेट डेज में रोज 40 मिनट की क्लास होगी. जूम 40 मिनट का मैक्सिमम टाइम देता है एक क्लास के लिए, और उसके बियॉन्ड हम इसे एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं. डेली आई एम हैविंग 2 क्लासेस, एक 2 बजे और एक 4 बजे, और आप लोगों का टाइम मैंने फिक्स कर दिया है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 2 बजे. तो गेम थियरी की एक और क्लास होगी, उसके बाद गेम थियरी आपकी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो होगा आपका यूनिट 3 फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर प्राइसिंग के आपको फटाफट मैं सारे कॉन्सेप्ट से समझा दूंगी. मीनवाइल आपको कल मैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर फोटो खींच करके स्कैन करके मूडल पे भी डाल दूंगी, आपके ग्रुप पर भी डाल दूंगी. आप उसे देख करके समझिएगा आप कितने सवाल कर पाते हैं. उसमें गेम थियरी में एक न्यूमेरिकल भी है. न्यूमेरिकल को आप छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल मैं जूम क्लास में नहीं समझा पाऊंगी, नहीं करा पाऊंगी. तो बाकी का जितना पोर्शन है, टाइप्स ऑफ गेम्स, ये जो मैं गेम्स के तरीके बता रही हूँ, इन पर शॉर्ट नोट्स हैं. इनके हैंड रिटन नोट्स बना करके मैं आपके मूडल पर अपडेट कर दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा. उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 3-4 दिन लग जाएंगे हैंड रिटन नोट्स को बनाने में. बाकी अंडरस्टैंडिंग आपकी जूम क्लास में क्लियर होगी. एनी डाउट इन टुडेज क्लास? हमने 2 टाइप के गेम्स आज खत्म किए, गेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड गेम्स ऑफ कंपटीशन. अगली क्लास में हम गेम्स ऑफ कंपटीशन का जो प्रोबेबिलिटी वाला इक्वेशन है, मुझे लगता है बहुत क्लियर, इसी इक्वेशन से हम शुरू करेंगे, और इसके बाद हम आएंगे गेम्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड गेम्स ऑफ कमिटमेंट. गेम्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस में केवल एक ही गेम है, हॉक एंड डाउ, तो वो भी जल्दी हो जाएगा. और गेम्स ऑफ कमिटमेंट में वी हैव 3 गेम्स, काइंडली किडनैपर, स्ट्रेंथ इज वीकनेस एंड इंटरजेनरेशनल गेम. तो टोटल 4 गेम्स हमारे पास हैं. गेम्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस में एक गेम है, और गेम्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस में एक गेम है, और गेम्स ऑफ कमिटमेंट में 3 गेम है. तो 4 गेम मुझे अगली क्लास में कराने हैं. प्लस मुझे आपको 2 चीजें बतानी है, मैक्सिमिन स्ट्रैटेजी, मिनिमैक्स स्ट्रैटेजी और सैडल पॉइंट. तो ये 7 चीजें मैं आपको बताऊंगी, 4 गेम्स प्लस 3 मोर. और इन्हीं पर आपको शॉर्ट नोट्स आएंगे. गेम थियरी का न्यूमेरिकल पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में मैंने दिया है, पर इस साल हम उसे नहीं कर पाएंगे. क्लियर? आपको अगर मैं इकोनोमेट्रिक्स नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग ऑप्ट करते हैं, तो उसमें ये बचा हुआ न्यूमेरिकल पोर्शन एज एन बोनस पॉइंट मैं आपको करा दूंगी. क्लियर? सो सी यू परसों, डे आफ्टर टुमारो, and at 2 p.m. I will also send the schedule right now. Please save it and be there on time. Because we have only 40 minutes, we cannot exceed 40 minutes, right? Okay, bye for now. Bye. And just send me the feedback in the WhatsApp group, right? Okay. Bye.